Hello and welcome to another episode of Take Two Creations. So, in the series of passion, and I don't know if this falls exactly in passion, but I know the person we are going to interview is a very passionate man. And this person is such a hot, a hot couple, actually. It's not just one person, it's a couple. And they are so well known in Washington, D.C. In the last few years, they have taken over the entire entertainment industry, Indian entertainment shows in Washington, D.C. area. I think I don't need to mention the name. People will already know I'm talking about Manish Sood and Deepa Sood. So uh, Manish and Deepa are running this business. I guess I'm guessing it's a business. It's Intense Entertainment, and under Intense Entertainment, they do have several kind of entertainments, including radio, Bollywood programs, musical programs, anything you name in entertainment. Manish is involved somehow. Manish and Deepa both. So welcome, Manish, to Thank our you, show. Manoj. Uh, Welcome, Manish. Thank you, It's so Cheta. good to have you here. And I think, Finally, yes, we are together on one I platform. know. and I love your cap. Actually, do you have a story to go with it? And we'll listen to it. Let's not embarrass You him right now. promised me that you're not going to open your mouth, you're not going to talk about it, but you started with that. The story is like most of the men who have given the cutting department to their wife for the first time. So it's completely, you know, मैं क्या Experiment, बताऊं क्या हो गया experimentation हो गया है. I think it's the story of every man who's in the lockdown situation right now. Manoj is very All of, clever. He wants to, You yeah, see, he's growing his hair. yeah, I'm letting it grow. That's yeah. better than cutting I it wish out. I would have done your way, man. Seriously. So, Manish, Intense DMV radio and Intense DMV shows, everybody knows about it. That's But right. today on our show, I want to understand the man and the woman behind this Intense DMV show. So I would like to know more about who Manish Sood is, who Deepa is, and let's talk about where your passion journey started to do these shows and what kind of, because you do a lot of Bollywood shows, how Bollywood had an influence on your life. So, from the childhood, let me tell you from my childhood story. I used to live in Mumbai. Ah, So when I was born and brought up in Mumbai, that time it was known as Bombay. right. So once you are living there, आपके खून में ही बॉलीवुड आ जाता है कि I was very much into event management. स्टेज पे आना मेरा शौक नहीं है बिल्कुल भी ना इस तरह का इंटरव्यू देने का बिल्कुल शौक है. I'm like a पीछे एंड का आदमी who would like to manage and micromanage things. My expertise is micromanagement. Okay. So मुझे याद है हम बॉम्बे में तो ना अपार्टमेंट्स होते हैं सिंगल फैमिली की बिल्डिंग्स Right. होती है ना तो बिल्डिंग के टेरेस पे हम न्यू ईयर पार्टी करते थे और वहां पे मैं माइक्रो मैनेजमेंट ये पूरे शोज करता था. Wow. तो अच्छा. बिल्डिंग्स पे अच्छा. ही कोई सिंगर होएगा कोई डांसर है कोई कुछ है तो वहां पे हम स्टेज बनाते थे और फिर कर्टन लगाते थे और इस तरह से घर से माइक सिस्टम घर से किसी का स्पीकर लेके घर का काम इस तरह सो बेसिकली खून में था बचपन से ही है. हाँ. बचपन से. Yeah, yeah. फिर जब अमेरिका आए तो दाल रोटी का सवाल होता है Right. तो ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की. ट्रैवल भी वाज डूइंग वेरी गुड बट देन when the travel agency got hit by internet online travel जब मैंने खुद ने मेरी टिकट ऑनलाइन पे देखा कि सस्ती मिल रही है being a travel agent right ये तो भैया काम हो गया. We need to find something else. अब क्या होता है जब बोलते हैं ना कि भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो 50 और खोलता है. तो उस जमाने में कोई एक शो होने वाला था और जो नेशनल प्रमोटर थे उनको मैं जानता था. मेरे को सिर्फ ये थी कि इतने बड़े बड़े ग्रुप्स की अगर ट्रैवल मैं करूंगा उनकी अरेंजमेंट मैं करूं तो उसमें मैं पैसा कमाऊंगा. राइट. सो वो नेशनल प्रमोटर का मेरे को एक दिन फोन आया कि हम एक बहुत बड़े ट्रूप को लेके वॉशिंगटन डीसी आ रहे हैं लेकिन हमारा यहाँ का जो प्रमोटर है उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है
तो आप I know you are a travel agent, so can you help us? अच्छा अच्छा। तो मैंने फोन पे तो मैंने उनको बोला सर हेल्प तो करूंगा, क्या हेल्प चाहिए? बोले वी वांट अ होटल, वी वांट transportation, we want food over there, basically everything, and we are about 35 people, and we'll be reaching there in domestic flight थी, so we'll be reaching there within 1.5 hours. तो अभी 1.5 घंटे में मुझे 35 लोगों के होटल रूम्स करने हैं, बस ट्रांसपोर्टेशन, देन ऑब्वियसली द मेन आर्टिस्ट आते हैं, बस में नहीं आते, वो SUVs में आएंगे. I said, and you know why I didn't know, and this is one of my other nature, I don't say no to things. Okay. मैं कभी जिंदगी में बोलता ही नहीं होएगा नहीं. तो पहले जंप मार लो, अपने आप तैरना आ जाए. So you like to take challenges. I like to take challenges. Okay. So I said, let's do it. मैं बोला हाँ ठीक है, हो जाएगा सर. तो बोले मैं 1.5 घंटे में पहुंच रहा हूँ. मैंने बोला ठीक है, 1.5 घंटे में पहुंच जाओ. और अब ट्रस्ट मी, कहाँ ना कहाँ से जब पड़ती है ना तो आदमी काम कर ही लेता है. Right. आज घर पे बैठे बैठे भी हम लोग ने ये सब करना शुरू कर दिया ना. Rightly said, I did it. जैसे वो एयरपोर्ट पे लैंड हुए, मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था, बस थी, 2 SUV थी, रेस्ट होटल का अरेंजमेंट था, चाबियां मेरे हाथ में थी. तो इन शॉर्ट सारा काम हो गया उनका. So they went in, they had the lunch and all, और किसी को पता ही नहीं कि 1.5 hours back ये नेशनल प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं था. कुछ भी नहीं था. वाओ. जब सारा कुछ हो गया तो जो नेशनल प्रमोटर थे उन्होंने एज अ कर्टेसी मुझे बोला कि आप आओ मेरे साथ एक कप बियर ले लो. दोपहर का टाइम था, बियर तो पिए. और तो दीपा भी मेरे साथ ही थी. बल्कि फिर जब बियर पी रहे थे तो बोलते थे तुम्हारे पास इतना सब कॉन्टैक्ट्स हैं कि 1.5 घंटे में तूने वो काम कर दिया जो आदमी दिन लगाते हैं, हफ्ते लगाते हैं. राइट. तो तुमने कभी ये बिजनेस का सोचा है? तो मैंने बोला नहीं, कभी नहीं सोचा है. तो बोलते कभी सोचना. अच्छा, उस बियर पीते पीते मैं यही देख रहा था कि यार मैं तो इधर मेरे ट्रैवल के बिजनेस के लिए आया था. ठीक है, ट्रैवल ऑनलाइन हो गया है, पता नहीं क्या होएगा कि नहीं. भगवान शायद मुझे भेजा है, भगवान ने भेजा है मुझे इस वक्त इस पोजीशन में. मे बी ही इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि ले तेरे लिए ये दरवाजा खोल दे. गॉड विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी, लेना आपके हाथ में. सही बात. आप लोग बोलते हैं ना हमारा तकदीर ही खराब है. तुम्हारी तकदीर खराब नहीं है, तुम अपॉर्चुनिटी को ध्यान नहीं देते. You have to pay attention what God is giving you and make the best of it. Right. वाह, क्या बात कही है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. तो ये बताओ, तो 2011 में you started this business. So उसी समय से Intense TMV की it grew over a period of time, obviously. ऐसा हुआ तो हमने नहीं, मैंने शो ले लिया. तो उन्होंने शो प्राइस, अच्छा शो भी मैं बताऊं, वो था आतिफ असलम और सुनिधि चौहान. अरे वाह. हाँ, शो भी बहुत अच्छा था. अच्छा, मैं सिंस ये इतने नॉलेज नहीं रखता था तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था. आई नो सुनिधि चौहान का नाम सुना हुआ था, मैंने आतिफ का नाम सुना हुआ था. 2011 में आतिफ एंड ऑल वर नॉट सो पॉपुलर. राइट. मैंने बोला ठीक है, एंड आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड आई सेड यस, विल डू इट. अच्छा, बात हो गई, डिपॉजिट दे आया मैं उसको. ठीक है कि आई लॉक्ड इन. दीपा मुझे रास्ते में बोलती है, क्या पागल वागल हो गए हो? क्या बोलते हैं, हमको कोई ए बी नॉलेज नहीं है, शो बिजनेस का ए भी नहीं हमको पता. राइट. टिकटें कहाँ बेचनी है, कैसे बेचनी है, क्या. मैं बोला नहीं, मैं उस टाइम शोज करती थी लविका भगत. I remember that. Yes. She is not anymore, and she is like, she was a gem of a person. Anyway, मैं और दीपा बैठे, हमने 2-3 चीजें, हमने पहले पूरी डिस्कशन की कि इंडियन शोज एज कंपेयर टू अमेरिकन शोज में क्या अंतर है और क्या प्रॉब्लम्स है. सबसे पहले हमने एक चीज नोट की कि जो आज तक जितने इंडियन शोज होते हैं, वो जितने भी लोग कर रहे हैं, प्रमोटर हैं, वो उनका सेकंड बिजनेस है, हॉबी है. अच्छा. No one has taken it as the main business. Right. तो कोई उस मुकाम पे पहुंच ही नहीं सकता अगर वो उसकी हॉबी है. राइट. सबसे पहले हमको वो ट्रेंड तोड़ना था कि हम और कुछ नहीं करेंगे, हम शो ही करेंगे. हम इसको अपना फर्स्ट बिजनेस बनाएंगे. तो हाउ वी आर डिफरेंट देन अदर्स, तभी सक्सेस होएगा आदमी. राइट. देखिए, अगर आप 24 आवर्स में से 18 घंटे एक किसी काम को दे रहे हो ना, तो आपने सक्सेस होना ही होना है. हो गई. राइट.
बिल्कुल, एक छोटी सी नाइफ से आप खड्डा खोदने शुरू कर दो, 18 घंटे दिन के आप खड्डा खोद लोगे नाइफ से। तो आपको बड़े हथियार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। So it's basically that passion and determination चाहिए, but उसके साथ आपको common sense भी चाहिए. So it took when did you start feeling comfortable with doing these shows? When you thought that now it's under control? हमने एक शो किया, मैं थोड़ा पीछे भी देखते रहता हूँ तो मुझे याद आता है कौन से जो पीछे मेरे ना पूरे शोज लगे हुए हैं। ये जो है ना, ये मेरा वॉल ऑफ फेम है, इसमें पूरे 60 to 65 शोज जितने आज तक मैंने किए हैं उसकी हर एक का फ्लायर है। जो फ्लायर हमारा बनता है, जो हम दुकानों पे बांटते हैं, वो फ्लायर हर एक शो का फ्लायर लगा। अच्छा, नाइस। तो मेरा जो शो था, फिर सलीम सुलेमान का हमने शो किया, उसके बाद जो एक शो आया वो आया उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब का 2012 में। वहां से हमारी काफी हमने बहुत चीजें सीखी, बट वहां से प्रीटी मच कॉन्फिडेंट हो गए हम कि कोई भी चैलेंज आएगा वी कैन टेक। So listening to you, I feel that you always had a very methodical approach to any challenge that you took. It's not कि आप सिर्फ challenge लेने में believe करते हो. Challenge तो अब ये हर कोई कह सकता है कि oh I like new challenges, but I see that very basic method to how you proceed with everything. So I would like to know कि did you contact people who were already in this show business, or did you learn from them, or did you study on your own? Like I really like the way you saw the difference between Indian and American shows, because that's why me personally, if I see an American show versus an Indian show, I see a big deal difference. With the same amount of money, I get a better experience in an American show. So like you said, to compete with that kind of show and pomp or that attraction, you have to do something more. So what was your learning curve there? So जब हम अमेरिकन शोज देखने जाते हैं थे ना यहाँ पे, तो अमेरिकन शोज में आपको क्या चीज मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द ईज ऑफ बाइंग अ टिकट। सबसे पहले यू गो टू टिकट मास्टर, यू पिक योर सीट, यू बाय योर टिकट, there's no fraud, there's no jhanjat, no jhamela. If the show is cancelled, your money is returned by Ticketmaster, so that safety is here. सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि वेन्यूज जो होते हैं अमेरिकन शोज के, दे आर द बेस्ट, बड़े अच्छे वेन्यूज में कर। सेकेंड, आप थर्ड आप देखोगे कि अदर देन द शो बिजनेस देयर आर अदर आर्टिफैक्ट्स अवेलेबल, अदर थिंग्स, बूज, खाना, merchandise, right? So there is a kind of other things to embrace you, to entertain you, right? Photo studio, right? ये चीजें आप देखते हो। It's a whole experience of, it's a whole experience, yes. और यही आप मेरा कोई शो उठा लो, कोई भी, उसमें मैं आपको 100% जो वेन्यूज है टॉप ऑफ द लाइन देता हूँ। MGM ले लो, जैसे MGM बना मेरे शोज चालू हो गए उधर। आप देखिए जब मैंने वहां पे किया वॉशिंगटन DC में जो नवा बना एंथम में, वहां मैंने बादशाह और सुनिधि किया। अब आप, फिर मैं इधर करता हूँ ईगल बैंक अरीना में, एम्पल ऑफ पार्किंग, नो इश्यूज एट ऑल, राइट? हर शो में मेरे, आपने देखा होगा मेरा खाना है। एवरी शो, देयर इज नो शो ऑफ माइन विदाउट फूड, नो शो। क्योंकि जब इंसान का पेट खाली होगा ना, उसको आप कितना भी अच्छा शो दिखा दो, वो उसमें से नुक्स निकाल लेगा, बिकॉज ही इज इरिटेटेड, राइट? एग्जैक्टली। तीसरी बात, अगर वहां पे अल्कोहल पीने वाले बंदे आते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 60%, 60 to 70% होगी। अगर आप पीने वाले को कॉन्सर्ट में अल्कोहल नहीं दोगे, आप भाई तानसेन को बुला लो, उसको मजा नहीं आना। आजकल के जमाने में आजकल के जमाने में वो नहीं आना, क्योंकि वहां पे लोग ना सिर्फ गाना सुनने नहीं आ रहे, गाना तो वो CD में भी सुन लेते हैं, राइट? वो आ रहे हैं अपनी एक सोशल गैदरिंग के लिए। And plus entertainment, they really need good entertainment, and especially in the life like today, सब कुछ तो available है।
हर कोई गाना वो सुन सकते हैं, 20 साल पुराना, 50 साल पुराना. Like you said, it's the total experience. It's the holistic experience, experience. the holistic experience that's important in this business, not just the music itself anymore. Right. तो ये तो आपकी बात हुई, जैसे आपने बताई कि किस तरह से venue and everything you find the best and you try to give that experience. Where does Deepa come in? Does she, as your wife and your partner, brings in that little bit of woman creativity into this whole planning? So Deepa is Sindhi. Okay. So that explains the finance part of it. Okay. She makes sure कि तुम इधर उधर के खामखा में पैसे ना उड़ाते फिरो. और फायदे के पैसे मेरे पास आए. हाँ, फजूल की जो भी काम मैं करता हूँ या मैं सोचता हूँ, मैं I'll always sit with Deepa and discuss कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्योंकि जो चीज मैं नहीं सोच पाता हूँ वो सोचती. Very nice. She is very good in taking out the negative factor of what I'm thinking. Proper बीवी है. So you complement each other so well. हाँ, मेरे हर चीज से नेगेटिव निकालती है, पर उस चीज को पॉजिटिवली लो ना. Right. That's very good. Because और मैं दीपा को बोलता हूँ ये मत सोचो यार, ये और ये तो मेरे हर चीज में गलत सोचती है, ये सोचो क्यों सोच रही है, क्यों सोच रही है, तो राइट है. तो पहले तो मुझे ईगो इश्यूज था. सबको होता है यार. हाँ, सबको. फिर बाद में दब जाते हैं, स्पेशली हस्बैंड हो तो. हाँ, men, what can I say? Okay. देखिए, आप हमको बोलते हो चेंज हो जाओ, पर आप लोग भी तो चेंज नहीं होते ना. हम भी बोलते हैं वुमन. सब कोई चेंज नहीं हो सकता. दीपा को बुलाएं प्लीज. मैं इसलिए I need somebody here. But then I saw कि जो मेरे में खामियां हैं, उसकी वो strong points हैं. That's why we form a very good team. Right. Yeah. Actually, जो couple team होती है, that usually works much better than individuals. Just for that reason, because they always end up complementing each other. एक दूसरे को negative, एक दूसरे की गलतियां पकड़ के ना ठीक कर देते हैं, और उसकी वजह से चीजें अच्छी हो जाती हैं. So that's a good compliment. Yeah. So that's why I was saying you are the hottest in a couple in many ways. Hottest and happening. I mean, अच्छा, physically presentation. मैं आपको बता दूं, हमारे झगड़े भी बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है. नहीं, वो ठीक है, वो तो होने जरूरी है. किसके नहीं होते हैं, किसके नहीं होते. क्लोज दोस्त में बहुत झगड़े हैं, मतलब कई बार तो सुमो रेसलिंग भी हो जाती है. जीती वही है, लेकिन at the end of the after all that झगड़े ना, जो end result निकलता है ना, वो positive निकलता है. Positive. Right. That's a good thing. Yeah. तो ये बताओ कि ये तुमने शुरू किया as your business, right? और थोड़ा कीड़ा था बम्बई का, थोड़ा जरूरत थी समय की, या जो भी कह लो. Do you think कि अब ये change evolve हो कि it has become your passion of life? It has become something that drives you all the time? देखिए, ऐसा था, ड्रीम तो ये मेरी थी हमेशा. उसको मैंने मारा हुआ था. अच्छा. अब जब मुझे चांस मिला, मैंने ले लिया ये. देखिए, जब आदमी की फैमिली हो जाती है, घर बार होता है, तो डर तो लगता है ना. पहले अभी किया नहीं, और अमेरिका जैसे शहर में हम आए हैं, हमको पता ही नहीं यहाँ पे कैसे पॉलिसी रन होती है, हॉल में क्या रेंट है. मुझे तो आपको मैं बताता, मुझे ये भी नहीं पता था कि हॉल रेंट लीज करते कैसे, या एक दिन के लिए देते हैं कि हफ्ते के लिए देते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था. मतलब we were so innocent about this. Anyway, but फिर जब ये चल पड़े ना, और राहत का शो में ऐसा हो गया था कि we had over 200 people that went back from the hall because ticketing it. So they thought they'll come to my hall and they'll buy it, but we were completely sold. And then I saw the potential. I saw this trade has a great potential. क्योंकि आज तक ये ट्रेड का, and I'm very new, मेरे को 2011 से पहले ये ट्रेड के बारे में कुछ नहीं पता था. I'm sure you know it much better than me about this trade, even before that. पर आज तक ये ट्रेड में इतनी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं थी. People did not get good. I'll give you some examples. अब हम दुकानों में टिकट बांट देते हैं, ठीक है. अब दुकानों में जब टिकट बांटते हैं,
there is so much of legwork, so much of running around to do. हाँ, कोई दुकान वाला फोन करता है, मनीष भाई ये वाली सीट नहीं चाहिए, कस्टमर को वो वाली सीट चाहिए. अब मैं वो वाली टिकटें ढूंढ रहा हूँ, फिर ढूंढ के भाग के वो दुकान में जाऊंगा, फिर उनको, you know, you are wasting your precious time. My shows में कोई टिकट कोई दुकान पे नहीं है, कुछ नहीं. हाँ, yeah, those days are gone. एक जमाने में होता था, अभी पिछले 10 सालों से. very bad hit मनोज जी उसके कारण, because Ticketmaster charges you 15 to 20% service fee. Wow. Yes. और हमारे देसी $100 टिकट का दे देंगे, लेकिन $102 सर्विस फी नहीं देंगे. They did not had the concept of paying service fee. Right. Absolutely. Yeah. और उनका मनीष को जानते हैं, उससे ले लेंगे सीधे. मनीष को चेक लिख देंगे और जाएंगे टिकट मास्टर पे, देखेंगे अरे $500 की टिकट है, लेकिन उसपे $25 मुझे सर्विस फी लग रही है. अरे यार जान दो. So he's looking at the 25 paying, not 500. Right. That was my biggest challenge in life. Right. And ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ कम से कम 3 मीटिंगें हुई हैं टिकट मास्टर के वाइस प्रेसिडेंट के साथ. अच्छा. क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था, उनका हेड ऑफिस है मैरीलैंड में, फेडेक्स फील्ड के वहां. उन्होंने मुझे बुलाया था कि why is it that Indian shows में टिकटें टिकट मास्टर पे बिकती नहीं? What is the problem? Right. We had a lot of back and forth meetings. We had उनके senior managers भी आए थे, and then we decided कि someone has to take a hit. Someone has to take a hit. So I collaborated with Ticketmaster, and Ticketmaster for the first few times lowered my fees, and I promised them I will not sell tickets anywhere else. Let's do it. तो मेरे पहले 2 शो तो बहुत बुरे गए. अच्छा. People refused to buy. Really? Yeah. And I was so tempted to take out the tickets and sell it back on the stores. But I said, आज मैं अगर हार गया ना, तो मैं जिंदगी भर के लिए हार. Right. जिंदगी भर वही चलता रहता है. वही चलता रहेगा. I won't be able. तो मैंने एक शो में $60,000 लॉस किया. Wow. And second show में मैंने $90,000 लॉस किया. Get out of here. Yeah. Wow. और दोनों शो मेरे एक ही मंथ में थे. Wow. $150,000. So in 1 month, I lost $150,000. एक अच्छा टाउन हाउस दूर किधर कैश पे आ जाता. Right. But I said, आज ये ट्रेंड नहीं तोड़ेंगे ना. अब आप ये बात सोचो, मेरे घर पे क्या हाल हो रहा है. सिंधी बनिया गिन रहा, पैसा जा रहा है. या तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ यार. I'm surprised. एक लिमिट तक पहुंच गए थे. तो but when it picked up, trust me, today I am so happy I did that. Yeah. So I think you answered my next question. I was going to ask, like, what were your setbacks? I understand you had a lot of setbacks. Yes. So it has to be passion that kept you going. Yes. Because बिना passion के तो ये सब हो नहीं सकता कि you took such a big hit and you had so many difficulties in like convincing people, finding venues or whatever, and you still kept on going. So after these setbacks, now where do you see this passion going? आपको मैं एक और सेटबैक बताता हूँ. हाँ. मैं वार्नर थिएटर में शो कर रहा था. ठीक है, पहले तो वार्नर थिएटर में जैसे हमने शो बुक कर दिया, सब कर दिया, and I was doing my first show over there. तो मैंने बोला we will be selling our food. तो बोले, oh no, you can't sell food over here. It's antique building है, ये है, वो है, हमारी policy है, we don't sell. I said, why? What stops you? तो मैंने उनको फिर बताया कि देखो हमारे में ना हिंदूज भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं. We are all melting pot. We are one community. ये सिर्फ हिंदू या क्रिश्चियंस का शो नहीं है, इसमें पूरे समाज के लोग आते हैं, पूरे धर्म के लोग आते हैं, और मुझे हर धर्म के सेंटिमेंट्स को देखना. ठीक है, तो मुस्लिम्स खाते हैं हलाल मीट, और आप कोई जो भी सैंडविच दे रहे हैं इधर, जो भी आपका खाना है, उसमें हलाल मीट तो है नहीं. तो क्या मैं मेरे मुस्लिम्स लोगों को 3 घंटा भूखा रखूंगा? Right. Impossible. I will rather not do the show, but then have this kind of a problem, because देखो मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरे को देख के आ रहे हैं
कि मनीष ने अरेंज किया होगा, राइट? हॉल में आके मेरा मुस्लिम भाई आके देखेगा कि यार यहाँ पे तो हलाल मीट है ही नहीं, हाँ, सामने पोर्क बेच रहे हैं या ऐसा चीज बेच रहे हैं जहाँ वो खा ही नहीं सकता आदमी, वो तो 3 घंटे बेचारा शो देख के चला जाएगा क्योंकि उसने टिकट खरीद लिया, शो देखने आ गया, लेकिन मेरी इमेज कितनी डाउन हो गई उसके साथ। राइट, अगली बार नहीं आएगा फिर तुम्हारे शो में। राइट राइट। तो उनका एक आदमी था मैनेजर जो मेरे से डिस्कस, हम मीटिंग कर रहे थे, हम बैठे थे ऐसे ही, तो उसके मैनेजर ने बोला नो 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 वी हैड ट्राइड वंस, द फूड स्मेल्स अ लॉट। मैं बोला ओ इट स्मेल्स अ लॉट, तो आपको स्मेल से प्रॉब्लम है ना? तो मैं बोला आप सबसे पहले फिर अपने बाथरूम बंद कीजिए, बाथरूम से ज्यादा स्मेल तो किसी में नहीं है। तो अपने हॉल में से बाथरूम बंद करो और बाथरूम आउटसाइड करने को बोलो लोगों को। नहीं नहीं, तो फिर वो थोड़ा सा मेलोडाउन हो गया। मैं बोला भाई देखो, खाना तो बिकेगा, आपको मेरे से शो कराना कराओ, नहीं कराना नहीं कराओ। देन देयर इज बोथ चीज हुई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम I'll tell you, Warner Theatre opened the gates for Indian foods to sell. Wow. और मैं आपको ये भी बताता हूँ, मेरे से पीछे जिसने शो किया था, जिन्होंने शो किया था, उन्होंने बाहर सड़क पे खाना लगाया था। अच्छा। क्योंकि मुझे उन्होंने बोला था कि क्यों पहले इंडियन शो हो चुका है, हमने बाहर फुटपाथ पे उनको खाना। मैं बोला मेरा खाना फुटपाथ पे नहीं बिकेगा। We are Indians, we have a self respect. हम क्यों बाहर जाके फुटपाथ पे खाना खाएं? राइट राइट। फूड, पीपल लव आवर फूड। आज इंडियन रेस्टोरेंट्स भरे हैं अमेरिकन से। आज तो हमारा वहां पे वार्नर थिएटर में That's a big accomplishment, not a setback. It could have been setback. और इसी तरह मैं आपको एक बात बताऊं, DAR Constitution Hall. Oh yes, that's another prestigious one. From the past 17 years, आप उनकी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स खोल के देख लेना, बहुत बड़े बड़े शो हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं उधर, राइट राइट। वहां पे कन्फेटी बैंड थी, कन्फेटी। अच्छा। मेरे राहत के शो में आप जाके देखो, हमने कन्फेटी चलाई है। अच्छा। कन्फेटी इज अ टूल फॉर एंटरटेनमेंट. That auditorium is meant for concerts and entertainment. They should allow us all entertainment ways of all the ways to entertain. Right. That is part of it. आप मुझे उनका लॉ बता दो, उनके उसमें क्या आप बोल दो कि एंटरटेनमेंट का आप कन्फेटी नहीं आपने लिखा नहीं है, या आप अपनी मर्जी से कैसे कर सकते? That's very interesting. All these things, maybe you were successful because you were unaware of all these things. You didn't go with this preconceived notion कि हाँ नहीं यहाँ पे तो ये होता है, इनके ये rules follow करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो बाहर, right? So you went with that challenge and you fought with because you had no preconceived notion. So that's a good thing. Yeah. Yes, and the kind of things you are saying, they are like so interesting. That हम लोग जैसे शो देखने जाते हैं, we never pay attention to these things. कभी सोचते भी नहीं है. कभी सोचते नहीं है कि ये सब would have gone into the thinking behind all these presentations or entertainment or whatever that experience is. So I'm sure ये जो कीड़ा आपका पैशन का जो वो बॉम्बे के टाइम से चला आ रहा है, उसी की वजह से you are able to think all these things through. आपको मैं और मेरी एक थोड़ी आज तक मैंने बताया नहीं कि इसको, जब मैं ऐसे चैलेंज ले लेता हूँ ना, मैं बहुत घबरा जाता हूँ। लग तो नहीं रहा, नहीं, अंदर से बहुत घबराता हूँ मैं। देखिए इंसान हूँ, राइट? तो हर आदमी घबराता है, हर आदमी अंदर में उसकी सोच चल रही होती है, उसको घबराना है। मैं फटाक से जाके बाथरूम में गर्म शावर के नीचे खड़ा हो जाता हूँ और 10-15 मिनट हॉट वाटर बाथ लेता हूँ, फिर आके ठंडे दिमाग से बैठ के फिर सोचता हूँ। मुझे भी बॉडी घबराहट होती है। जैसे मैंने उनको बोल दिया मेरा शो ही नहीं होएगा अगर आप हलाल फूड नहीं दोगे, बोल के तो आ गया। उन्होंने मुझे राइट अवे थोड़ी ना यस बोला था, राइट। अब मैं घर आ गया, मैंने बोला यार मैंने मगरमच्छ के हाथ डाल दी है, हाथ डाल दिया है, वो तो काट देंगे। अब देखो वहां से 2 दिन के बाद ईमेल आता है, वी अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स एंड वी अप्रिशिएट द वे यू थिंक फॉर योर कस्टमर्स। And we have seen the first promoter who fights for their customer. Normally people come here and fight to lower the rent so that they can make more money. But you have not even talked once about the rent. You are ready to pay us more money because you want your customers to have satisfied good meal, hot meal. Yeah. So we see that enthusiasm in you and that's why we allow it. I think I was there for that show.
Adnan, नहीं किसका था? Adnan Sami का था? Adnan Sami. Adnan Sami. I I was think there. we watched Yeah, that show. I was Yes. there too. Yeah, Yes. yeah. So talking about passion, ये तो आपकी बात हुई showbiz की and everything else. आजकल मुझे पता चला आपका एक और भी पैशन शुरू हुआ है. वो तो सारे हस्बैंड्स को मुसीबत में डाले हुए है. आप इतने अच्छा खाना बना के दीपा को खिलाते हैं और उसकी पूरी रेसिपीज एंड ऑल. अब लड़कियां तो आपकी बहुत फैन बन गई हैं. बहुत सारी लड़कियां आपकी फैन हैं, लेकिन मैन आपके दुश्मन बने हुए हैं. आपको ये पता नहीं है. एक्चुअली आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी मुझे किसी आदमी का गाली देके फोन आता है ना, हाँ. मैं उसको एक ही बोलता हूँ, देख भाई, मैंने जिंदगी में, मैंने आज तक मैं 51 का हूँ, तो मैंने 51 इयर्स में मैंने ब्रेड सेकी है और बॉइल्ड अंडे बनाए थे. हाँ, और चाय बनाता हूँ. हाँ. चाय, सुबह की जो चाय है ना, मॉर्निंग बेड टी, वो दीपा उठती है जब मैं चाय बनाता हूँ, उसको लाके देता हूँ. ये हमारा सालों से बेड टी. बट उसके अलावा मैंने जिंदगी में किचन में गया ही नहीं था. बट आई एम सो मच कनेक्टेड टू पीपल. आई लाइक दैट. मुझे जैसे मैं आपके साथ 3 दिन कंटिन्यूस बात कर सकता हूँ बिना सोए. आप बिना सोए अगर आप लोग जाके, मतलब हम लोग शायद ना सोए. टॉकिंग टू पीपल, दैट इज माय बिगेस्ट पैशन. और मुझे सडनली आपने 4 दीवारी में, आपने नहीं, मतलब 4 दीवारी में हम बंद हो गए, बंद हो गए, सारा कुछ एकदम पोस्टपोन हो गया. एंड आई वाज लाइक, दिस इज नॉट हैपन, इट कैन नॉट हैपन टू मी. आई डोंट केयर अबाउट मनी, आई जस्ट वांट पीपल. तो फिर यू नो, दीपा ने बोला कि यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू पीपल, यू शुड कम ऑन फेसबुक. और मैं, आप देखिए, अगर आप कभी भी मेरे फेसबुक पे जाओगे ना, मैंने अपनी ना कभी वो सेल्फ ऑब्सेस्ड फोटोज नहीं डाली हुई है. मैंने कभी अपनी सेल्फीज, आप देखिए, मैं नहीं डालता हूँ. आई एम वेरी, दैट वे आई एम वेरी शाय. राइट. सो आई सेड आई डोंट वांट टू गो फेसबुक लाइव एंड ऑल. तो बोलती, नहीं, आप कुकिंग करो, कि आपके जैसे जो आदमी हैं जो कुकिंग कम जानते हैं, जो यू नो, जो बड़े बड़े शेफ हैं, एंड मैन आर गुड शेफ, बड़े बड़े होटलों में सारे मैन ही हैं, दे आर द बेस्ट. तो इतने डिटेल में कोई बड़ी चीजें मत बनाओ. आप छोटी मोटी चीजें बनाओ विच इज इजी, जिसमें रेसिपी कम लगती है, जो घर में रेसिपी हो आदमी बना ले. तो दैट वाज माय फंडा. But your presentation is like amazing. Your presentation is amazing. And the way he makes like Thai chicken and pav bhaji, the presentation, oh my God. So it's all about, because he's a marketing person. Ingredients बड़े मामूली से हैं. No, yeah. It's a very simple cooking, but the way you talk and the way you present it. So I think I'm really impressed by you now. So you're making live videos of your cooking? Yes. Oh, nice. He's actually cooking while he's cooking them. He's making videos and people are looking and he's जो इंसान सिर्फ ब्रेड गरम करना जानता था, आज मैं, अगर वो पाव भाजी बना रहा है, आज मैंने वो आपने आज देखा नहीं होगा शायद, लेटस रैप जो होता है. Oh, they were amazing. They looked amazing. Yeah. अच्छा. तो उसको मैंने नाम दे दिया लेट अस रैप. तो फिर पाव भाजी है जो मुंबई स्टाइल की पाव भाजी है ना. पाव भाजी तो बहुत किस्म की है, बॉम्बे की है. अभी मेरा एक सेगमेंट आ रहा है जिसमें बॉम्बे के जो भाई लोग हैं, जब वो भाई लोग गेम करके आते थे या कुछ काम करके आते थे भाईगिरी का, उसके बाद वो क्या खाना खाते थे वो मैं बनाने वाला. अच्छा, उसका भी स्पेशल खाना है? स्पेशल खाना होता है उनका. वाओ, अच्छा. So मुझे लगता है कि whenever you pick up a challenge, you actually study about it, or how do you get these ideas? I mean, cooking एक दिन में तो नहीं आ जाती. So when you thought of, चलो मैं cooking करता हूँ, so did you start looking at recipes, go to YouTube, or how did you start? This is एक ही word है उसके लिए, दीपा. अच्छा. तो हम उसको बोलते हैं, मुझे बता क्या बनाना है, ये बना. तो वो चीज ढूंढती है, वो इंग्रेडिएंट्स रेडी करती है, वो कटोरियां लगा देती हैं, वो लाइन से बता देती है क्या क्या डालना है. अच्छा. काम हम करते हैं. ये तो आपने अपना सीक्रेट आउट कर दिया यार, अब तो बेकार है. अरे यार, चलो ये सीक्रेट हम काट देंगे. एक बात बताता हूँ मैं आपको. सीक्रेट आपका, दीपा ने मुझे इंग्रेडिएंट्स दे दिए, दीपा ने बता दिया. जो कॉन्फिडेंस से मैं करता हूँ वो तो कोई नहीं बोलेगा ना, इसने कभी बनाया नहीं था.
Those videos are amazing, actually, I must say. So recipe uski hai, but you do the presentation. Preparation. He prepares as well. Preparation and presentation also, right? Yes. Is that yours? Presentation, preparation, और उसको किस लहजे से बोलना है, क्या करना है. अब बॉम्बे की पाव भाजी मैंने बॉम्बेया भाषा में बोला था. अपन को क्या करना है, बिडो, you know, आयला. This totally explains your entertainment business, right? Exactly. The way you guys work. Exactly. She does all the recipes and preparation for, get things ready, and you put them together, you prepare it and present it, right? I present it. Yeah. That's it. So she is the power behind your passion. हाँ, वो surge protector. Yes. Surge protector. I love that name. Coming back to your entertainment passion or business, whatever you want to call it, I call it's mixed now, right? It is. So usme, you deal with so many people with very big egos, and so many people with really talented people. Javed Akhtar, Sonu Nigam, Rahat Fateh Ali Khan, Shreya. I mean, ऐसे लोगों के साथ मिलके, what have you learned? One thing that you say, yeah, I can say that these people are connected one way. Can you think of something? There is some commonality among all these highly talented people. Yes. And being successful. One thing very common. Yeah. They all have talent and they are all artists. Right. तो सब में वही पैशन है जो एक सच्चे आर्टिस्ट में होता है. हाँ. बाकी आपने जो बोला ईगो है, ये है, कसम खुदा की मेरे साथ मैंने शाहरुख खान का भी शो किया. शाहरुख खान था, अभिषेक बच्चन था, दीपिका पादुकोण थी, बोमन ईरानी, यो हनी सिंह, कनिका कपूर, ये पूरा जो स्लैम का टूर आया था. That was the biggest show in my life. $1.8 million. Wow. और मैं कभी किया था मैंने 2014 में. तो मेरे को सिर्फ 2 साल हुए थे बिजनेस शुरू किए. Only 2 years. तो जब मैंने शो ले लिया था, तो वो शो मैंने जब लिया तो मैंने अनाउंस किया. जब मैंने अनाउंस कर दिया तो मुझे लगा I become king, right? शाहरुख खान. Yeah, exactly. आपको पता है मुझे कांग्रेचुलेशन से ज्यादा मेरे ऊपर मजाक उड़ाए गए थे. अच्छा. आधा से ज्यादा जब भी मैं शाहरुख खान का फोटो डालता या मैं बोलता कि मैं स्लैम टूर कर रहा हूँ, नीचे आता ये होएगा ही नहीं, ये कल का छोकरा क्या करेगा. Oh my God, it was such a depressing thing कि मुझे ये सोशल मीडिया पे डालने पे ही डर लग रहा था. अच्छा. I was so scared because जैसे मैं कुछ डालता था, there would be funny things written about it. हाँ, because you were new. That's why. About me. No, because you were new. Because I was new. I had no experience. जिंदगी में जो शाहरुख खान, अच्छा जो अलग दूसरी सिटीज में कर रहे थे ना, जैसे न्यू जर्सी में कन्नू चौहान कर रहा था. 50 साल से शो कर रहे. तो इतने पुराने लोग कर रहे थे. बीच में कौन? वॉशिंगटन डीसी में 2 साल पुराना मनीष सूद. शक्ल भी nobody knows. तो देखिए बात तो उनकी भी सही है. नो डाउट. अच्छा एक दिन मुझे, अच्छा मैंने ऊपर से हॉल कौन सा ले लिया? गेन्सविल में जेफी ल्यूब लाइव. आज तक बड़े शो आप बताइए बड़े आर्टिस्ट के कहाँ पे हुए हैं? या तो वेराइजन सेंटर में हुए, राइट, या तो फिर ईगल बैंक अरीना में हुए. पेट्रियट सेंटर बोलते हैं उसको, अभी ईगल बैंक अरीना, ईगल बैंक हो गया. राइट, जगह होते हैं. राइट. तो मैंने क्या किया, आउट ऑफ द बॉक्स अगेन गया हूँ. जेफी ल्यूब लाइव आज तक जिंदगी में इंडियन शो कभी नहीं हुआ था. तो मैंने बोला इधर क्यों नहीं हुआ शो? तो बोलते नहीं ये तो आउटडोर है, ये है वो है. जब मैंने हॉल देखा, आप लोग ने स्लैम देखा कि नहीं पता नहीं मुझे, नहीं, पर मुझे शाहरुख खान ने, और ये बात मैं शाहरुख खान से बुलवा सकता हूँ, शाहरुख खान ने बोला मैंने जिंदगी में मनीष भाई बहुत शो किए, जो शो तुमने करवा दिया ना इधर, मैंने ऐसा शो. People love that show, I know. It was the outdoor venue. Yes, I know और मैंने, और हमारे 12 से 13 हजार लोग थे.
आधे हॉल को रिंग बनाया हुआ था ब्लू कलर का, ग्लो रिंग्स, आधे हॉल को ग्रीन। क्यों? सोचो जब अंधेरा होता है तो पूरे 12,000 आदमी ब्लू और ग्रीन के हॉल में आपको दिख रहा है। जब शाहरुख खान स्टेज से उनको देखता है, इट्स लाइक व्हाट इज दिस, ही वाज टोटली गॉन। मतलब उसके तो उसने तो इतना मुझे फैन हो गया तुम्हारा वो। 3 टाइम स्टेज पे बुलाया। सो ही वाज लाइक क्रेजी। उसकी भी बड़ी एक आपको छोटी सी मजे की बात बताता हूँ। सबसे बड़ी फैन जो है ना वो दीपा है शाहरुख खान की। हाँ, yeah, we know that. Me too. आप भी? वेरी गुड। Oh my God, I love him. वैसे है ही उनकी सबसे फैन। Not all ladies, I am. आप हो और दीपा है, चलो 2 जन तो हैं। हाँ। तो आप कभी भी नोट करना, तो जितने भी मेरे शोज हुए हैं, जब आर्टिस्ट हमको स्टेज पे बुलाते हैं ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो टू थैंक अस, तो मैं पहले आता हूँ, मेरे पीछे पीछे दीपा आती है, मैं हाथ में माइक पकड़ता हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ, जस्ट अ जनरल कर्टेसी। राइट। तो हमको बोला गया था कि अभी शाहरुख आपको स्टेज पे बुलाएंगे, तो आप प्लीज यहीं खड़े रहना। तो हम स्टेज के पीछे खड़े थे। तो जैसे ट्रेंड था वैसे ही उसने मुझे बुलाया, आई वुड लाइक टू कॉल अप ऑन स्टेज मनीष एंड दीपा प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो मैं निकला हूँ, पीछे से मेरे को जोर से धक्का पड़ा। मैं लिटरली गिरा। मैं पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं है, देखा तो आगे दीपा निकल गई। तो दीपा निकल गई, मैं उस वक्त तो कुछ बोल नहीं सका। जब ये सब हो गया स्टेज का ड्रामा खत्म, मैं जब वापस आया, मैं बोला अबे धक्का क्यों आ रहा है मेरे को? हर टाइम आप जाते हो, ये मेरा चांस था, पहले उनको जाके मिलना था। क्योंकि अगर आप पहले चले जाते, वो आपसे ही बात करता रहता, मैं वो ही पीछे साइड में खड़ी रहती। तो मैं शाहरुख के साथ ये चांस नहीं ले सकती, इसलिए मैंने धक्का ही मार दिया आपको कि गिरोगे तो बाद में उठ के आ जाओगे कि मैं जा रही हूँ। Oh my God, that is so funny. That is so funny. I would have done the same. जब तक ना चेतना जी, मनोज जी, आज तक जितने भी प्रमोटर थे ना, वो इसको बिजनेस तो करते ही थे, वो ये देखते थे कि वो कहाँ पे पैसा बना सके। पैसा बनाना बुरी बात नहीं है, बिजनेस आपका, because you are in business, you have to. मेरे साथ ये पैशन भी है, सिर्फ बिजनेस नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि मैं एज अ कस्टमर अगर होता ये शो में, तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, और वो मैं अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता हूँ। Yeah. And that's, now you really touched me as a customer. And I want to take this message and pass it on to rest of the people in the DC area. क्योंकि तुम्हें सबसे तो बात करने का मौका मिलता नहीं. People don't get to hear कि मनीष के दिमाग में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है. Thank you. So one last question I want to ask you, and then Chetna might have another last question. But one last question I want to ask you is कि इतने सारे तुमने शोज किए, कितने 62 वॉल ऑफ फेम में 70 करीब हो गए वॉल ऑफ फेम. तो 70 शोज में कैन यू नेम 1 or 2 shows and you say कि इन शोज को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता. नेम 2 shows. मेरे देखो सबसे जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम जो था और सबसे बड़ा शो था मेरा, वो स्लैम था. तो शाहरुख खान का शो तो मैं जिंदगी में भूल नहीं सकते. और जब शाहरुख खान भूलने वाली चीज ही नहीं है. जब शाहरुख खान ने मुझे स्टेज पे गले मिलके बोल दिया कि भाई इससे अच्छा शो मैंने ये टूर में किया ही नहीं, तो आई कैन नॉट सी एनीथिंग अबव एंड बियॉन्ड दिस. आई हैव नथिंग बियॉन्ड दिस. ठीक है, एक ये शो था. एक शो मेरा था जो मुझे सबसे प्यारा है, वो मेरा सबसे जिगर का भी है, सोनू निगम का. So Sonu is something which I don't consider as an artist for me. I consider my brother, my mentor, my everything. Wow. Because he's such a disciplined person. कभी आप सोनू के साथ बैठो और कभी बात करो ना, उनके साथ बैठ के जितना ज्ञान मिलता है हमको, right? हाँ, वो बहुत बढ़िया आदमी है. एक और मैं आपको 2 और मेरे आर्टिस्ट हैं. एक तो सोनू निगम जी हैं सबसे टॉप में, उनके साथ ऑलमोस्ट टू द पार है श्रेया घोषाल. वो हमारे जिंदगी में जब मैंने उनका पहला शो किया था, तब से आज तक उनकी शादी हुई, जो सब हमने पूरी जर्नी देखी है उनकी. एंड उनकी मैंने एक जर्नी भी देखी थी जब वो नवे आए थे. मैंने नहीं शो किया था, लविका ने किया था. तो शी वॉज न्यू, वेरी न्यू टू द मार्केट.
तो वो रो पड़ी थी स्टेज पे कुछ कारण से, तो वो भी मैंने उसकी उनकी जर्नी देखी है, और टू अ पॉइंट नाउ दैट शी इज नंबर 1 आर्टिस्ट। उनके और उनके फादर के साथ कभी आप बैठो ना सर, ही इज सच एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू डू श्रेया's शो, one because obviously श्रेया शो इज ऑलवेज सोल्ड आउट, और बहुत बढ़िया शो करती हैं वो, और उनके फादर के साथ मुझे ना उस रात को बैठ के बातें करने का मजा आता है। बल्कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट, ये सोनू श्रेया, मैं 2 और आर्टिस्ट का नाम लूंगा जल्दी से। एक है उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। राहत फतेह, आई न्यू कि उनका नाम तुम लोगे। मैं तो लूंगा, मतलब ये एक ऐसे इंसान है जो मेरी जिंदगी है, जहाँ से मतलब इन्होंने मुझे बहुत कुछ भी सिखाया, राहत भाई ने। काफी चीजें मेरे को बहुत कई बार डर लगता था कुछ चीजों से, तो ये इनकी इंस्पिरेशन मिलती थी मुझे। मैं आपको डर के बारे में भी बताता हूँ। चौथे जो मेन है, जो मेरे भाई दोस्त हैं, वो है मिक्का सिंह। मिक्का की आप एक बात देखना, वो जिंदगी में हर एक से जिससे भी मिलते हैं ना, इतने प्यार से मिलते हैं और वो अपना बना लेते हैं उनके जैसा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो खूबी आपको मैं बताऊं, ये बहुत रेयर है आर्टिस्ट में, मिक्का हर दूसरे टैलेंट सिंगर की तारीफ करते और अपने टाइमलाइन पे भी डाल देंगे। उनको किसी चीज का, मोस्टली सिंगर्स नहीं करते हैं दूसरे सिंगर्स। राइट। आज मिक्का के आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ या मिक्का जी के आप उधर जाओ, आपको हर दूसरा सिंगर मिक्का जी के उस पे दिखेगा। वो कहते हैं कि जिस तरह ज्ञान बांटते हैं तो कम नहीं होता ना, इस तरह दूसरे आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देने से कम नहीं होती, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती। कुमार सानू जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुमार सानू जी इज अ लेजेंड, लेकिन जब वो आते हैं ना, वो ये होता है कि हम उनके आगे हाथ जोड़ के सर नीचे करके खड़े हैं, बिकॉज लेजेंड है, लेकिन वो आप भी हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई नहीं, आप प्रमोटर हैं। ऐसे डाउन टू अर्थ वाले लोग हैं सर। आज कुमार सानू जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जो एटीट्यूड देखो तो सो नाइस पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन। यार मनीष, तुमसे बात करके बहुत मजा आया। आई विश कि हम अपना 4 घंटे का टेप बनाए तुम्हारा रिकॉर्डिंग। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ जाते जाते, लास्ट जरूर। ये जो मेरा पैशन है, ये जो मैंने बिजनेस संभाला है, और ये जो मैं क्लाइंट को प्यार देता हूँ, मेरे कस्टमर को, और मैं उनके लिए सोचता हूँ ना, आपको मैं बहुत बड़ा, मनोज जी और चेतना जी, एक एग्जांपल दूंगा। आपको पता है ये साल 2019 इंडिया पाकिस्तान का क्या बुरा हाल था, सब जानते हैं। वॉर तक की नौबत थी। राइट। आप देख लीजिए, मैं बीइंग इंडियन, मैंने उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब का भी शो किया, मैंने सोनू निगम का भी शो किया नेहा कक्कड़ के साथ, मैंने फवाद खान का भी शो किया, और मैंने आतिफ असलम का भी शो किया। राइट। मैंने मिक्का सिंह का भी शो किया। सो माय पॉइंट इज, हम एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। मेरे लिए मजहब और सरहदें डज नॉट मैटर। मेरे लिए व्हाट मैटर्स इज who is a good artist and who's not. That is the only thing which matters. Very well said. Very well said. So thank you, Manish. Thank you so much for talking to us. And we know that you are face of Intense. You are the brain behind Intense. And you have this wonderful, wonderful entertainment business, or whatever you call it, promotion for us in this area. Empire now in this area. We wish you all the best for the future shows, because we really love your shows. But at the same time, I think it was, for me, it was a lot of fun, and I'm sure for Manoj as well, to know you as a person. And I'm sure our listeners will love it too, to know about your passions, and good luck with everything. Thank you so much. Thank you for inviting me. Yeah, your journey was remarkable, and I'm so glad that we got to know better of you, Manish Sood, as a person, and hope we get more chances like this to talk to you in the future as well. And Deepa too next time. Yes, Deepa. We'll talk with Deepa next time. Bilkul. I think we have some secrets to share with her, or she has some secrets to share with us. All right, Manish, thank you.
Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.